All right, so here we are live. Just let me check how many of you have joined. Just let me tell me in the comment section how many of you have joined. Okay, hi, Praveen is there. Praveen, you want to say something? Hello, hello. Hey, Praveen, you want to say something? Nothing, sir. Nothing. Nothing. Okay, you just raised hand. Okay, fair enough, fair enough. All right. Good morning, Akash. How are you? All right, so we are going to start our session 2 of war का session 2 हम start करने वाले हैं. Okay, as of now we have 3 people online. और जो लोग WhatsApp पे मुझे मैसेज कर रहे हैं प्लीज यहाँ पे लाइव आ जाइए. The session is open for everyone. Okay, so I guess you guys have seen the previous session. आप लोगों ने previous session को देख लिया है. Just let me know in the comment section जो first class थी war की. Have you seen that? जो लोग लाइव नहीं थे उन लोगों ने क्या रिकॉर्डेड देखा है? जस्ट एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, फिर मैं सेशन को स्टार्ट करूंगा. ऑलराइट, ओके आयुष प्रताप, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ओके, सो एक बार मैं स्क्रीन को दे रहा हूं, ठीक है. वट एवर यू कैन सी द क्वेश्चन. आपका हाउ इज द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म. ये आपको दिख रहा है जो मैं रेड कलर में जो मैं लिख रहा हूं? कैन यू सी दैट? कैन यू सी दैट? जस्ट लेट मी चेक. Okay, wonderful. So we would be continuing our second session. Okay, in the previous session, we saw the question, the previous year questions on globalization, caste identity, and all the related questions जो कि अपने UPSC के mains में आए थे. ठीक है. Now we are going to discuss the next question. Okay, 2018 में आया थे question and 24 में it got repeated. Okay, the question was rephrased but पूछी same चीज ही थी. How is the Indian concept of secularism? Just a minute here. How is the Indian concept of what's happening? Just a minute here. I don't know what's wrong with this. Okay. How is the Indian concept of secularism different from Western model of secularism? इससे मिलता जुलता क्वेश्चन देखो 2024 में भी आया था. What was the question? The question was that how is the Indian model of secularism different from USA model of secularism? मतलब पूछी कुल मिला के सेम चीज ही थी. Okay, the same things they asked. Okay, now we are going to frame this answer. ठीक है. Before framing this answer, secularism is a thematic repetitive topic. हर तीन चार साल में सेक्युलरिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली GS1 GS4 में रिपीट होता ही है. ओके, तो हम अभी GS1 सोसाइटी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके, फ्रॉम आई गेस नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद ज्योग्राफी. ओके, सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग सेक्युलरिज्म कम्स. ठीक है. हाउ यू कैन इंट्रोड्यूस सेक्युलरिज्म. मैं आपको एक थंब रूल बता रहा हूं, 2-3 टाइप के इंट्रोडक्शन आप इसको मतलब बताना. ओके, एज पर राजीव भार्गवा. ओके, इंडियन सेक्युलरिज्म stands for principled distance of state from religion. What do you mean by principal distance? कि जैसे वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म इट फॉलो स्ट्रिक्ट नॉन इंटरफेरेंस कि भाई स्टेट अलग रहेगा रिलीजन अलग रहेगा. बट इंडिया में व्हाट गवर्नमेंट डज, गवर्नमेंट कोशिश करती है कि भाई हम दूर रहे रिलीजियस मैटर से, बट जो रिलीजन में जो इररेशनल प्रैक्टिसेस है उसको हटा के हम रिमूव करेंगे. फॉर एग्जांपल सती प्रथा. ओके, इस टाइप की चीजें. तो देखो सेक्युलरिज्म में एक आप ये एग्जांपल दे सकते हो इंट्रोडक्शन में, और यू कैन जस्ट कोट गांधी जी.
Indian secularism stands for Sarva Dharma Sambhav, सर्व धर्म संभवा. देखो, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन अगर पहले से प्रिपेयर्ड हो तो थिंग्स बिकम वेरी वेरी इजी. ओके, these are two types of introduction that you can write in the model of secularism. Okay, now what they're asking, how the Indian concept. Okay, अब एक चीज देखना, व्हाट इज द कॉमन थिंग इन द टॉपर्स कॉपी. टॉपर्स के कॉपी में कॉमन चीज क्या रहती है कि वो किसी भी आर्ग्यूमेंट में एग्जांपल्स को यूज करते हैं. इन दिस क्लास आई विल टीच यू हाउ टू क्रिएट लाइव एग्जांपल्स. ठीक है, अब आज के बाद देखो, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में व्हेन आई टॉट यू कि any question regarding globalization, any question regarding caste hierarchy, you already have a prepared framework. ठीक है, similar questions we discussed. तो आज के after this class, if any question comes regarding secularism, you would have a prepared framework. Okay, let's first understand the concept of secularism. Okay, are my handwritten notes visible to everyone? Just tell me, are my handwritten notes visible to everyone? Is it visible? Quickly tell me. Okay, you just need to reply me. Okay, great, Namrata. All right. So I am going to explain you the. Okay, great. Thank you, Ayush. Okay. So any question on secularism, we have to think in 4 to 5 lines. Okay. The concept of West, the concept of West. Okay, they follow strict non-interference. Strict non-interference. ठीक है, for example, religion is a very private matter for Western concept and state will not interfere in any case. For example that you can give. Okay, that the state, you can give the example of Italy. I'm taking this example from world history. That state never interferes in the matter of Pope. Okay, Pope is the Orthodox head. Okay, Orthodox Christianity head. Okay, state and religion are totally, I would say, non-interfering in each other's matter. Okay, the Western concept of secularism, why do we need secularism? Okay, because in India, what we see, that more than 700 people, more than 700 caste is there, more than 120 languages are spoken. Okay, to ensure accommodative nature कि भाई सब मिलके अच्छे से इक्वालिटी में ओके रह सके. ओके, we ensure Indian secularism, but in Western countries, especially in Europe, in USA, the population is mostly homogeneous. Mostly they follow Christianity. Okay, there is very less or no minority. Okay, so Western concept of secularism is designed as per the homogeneous population. Okay, and as I said, church is strictly separated from religious and individual matters. Okay, so these are the 3 canons of Western secularism. What are the 3 canons? Okay, West, individual, the religious matter is very individualistic and it's private. The West has homogeneous population and there is strict separation of state and religion. Okay, but if I talk about the Indian concept, okay, if I talk about the Indian concept, Indian concept, the first thing we have heterogeneous society. Okay, more than 120 languages, more than 700 castes and tribes are there. Okay, so Indian model of secularism is mandated to secure the interest of minorities. Okay, minorities, what? Religious and linguistic minorities, that is mentioned in Article 29. Okay, so for that purpose, what Indian model is following? A special safeguard measures. Okay, special safeguard measures are given to the minorities. Example, Article 29 and 30.
to protect their educational rights, to protect their cultural rights, to preserve their language, script, and culture. We are linking polity with this. Okay, we are linking polity with this. Ayush Pratap is saying, kindly explain homogeneous aspect again, sir, of the West. Okay, okay. Ayush, just give me a minute. Okay, just give me a minute. होमोजीनियस एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है भाई? देखो, आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखोगे आयुष, क्या होता है कि भाई वहां पे सेम सिंगल रिलीजन के लोग रहते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट यूके. दे फॉलो क्रिश्चियनिटी. यूएसए, दे फॉलो क्रिश्चियनिटी. फ्रांस, दे फॉलो क्रिश्चियनिटी. अभी धीरे धीरे मुस्लिम माइनॉरिटीज आते जा रहे हैं. ओके, तो वेस्ट में एक चीज क्या रहता है? ओके, व्हाट इज द कॉमन थिंग देयर? दे हैव, देखो, रिलीजन कॉमन है, तो सेम प्रैक्टिसेस, सेम थॉट प्रोसेस, सेम लैंग्वेज, सेम स्क्रिप्ट, सेम कल्चर. तो अलग से किसी को किसी के लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्शन की जरूरत है नहीं. अनलाइक इंडिया जहां पे हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, वी नीड टू गिव अ लॉट ऑफ प्रोटेक्शन टू द हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, जैसे जैनिस्ट, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स को, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन देना रहता है. बट दैट इज नॉट द केस विद वेस्ट. तो वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म इस वजह से क्या हो गया? स्टेट बोल देता है कि ओके, वी विल बी स्ट्रिक्टली अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ religious matters because all of them have common religious practices. Ayush, I guess ये चीज समझ में आई आपको? I hope it's clear. Just tell me quickly, just give me the approval, then I'll move forward. Okay, wonderful Ayush. Okay, that's great. Okay, moving forward. So Indian model of secularism, भाई देखो, homogeneous, heterogeneous हो गया, secure minority interest, ठीक है, and safeguard is given through Article 2930. Okay. India, we have communitarian values. Indian model of secularism, we have communitarian values. Example, what you can give an example? ठीक है, in Chandni Chowk area, Delhi Chandni Chowk area, ठीक है, what kind of Buddhist, Hindu, Jain and Muslims are living? People of different religious dominations are living together. Okay, and all of them are having, मतलब क्या, एक common communitarian value because of economic interdependence, ठीक है, common social values, common religious gathering, ये सारी चीजें हैं. But there are many times कि ये जो common अलग अलग सेक्ट के लोगों के आपस में clashes देखने को मिल जाते हैं. Okay, so Indian model of secularism में क्या चीज देखने को मिलेगी? What would be the thing? कि इंडिया में strict law and order मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है. सो इनडायरेक्टली स्टेट हैज टू इंटरवीन इन द रिलीजियस मैटर्स. ओके, जो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस, व्हाट आई सेड अबाउट प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस. ओके, देखो, कहीं पे भी कोई सा पॉइंट अगर समझ में नहीं आए, जस्ट तुरंत लेट मी नो, जल्दी से जल्दी मुझे बताना. ठीक है, आई होप दिस कम्युनिटेरियन पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. Just let me know quickly. Okay, great. I'll just check the comments अगर किसी को डाउट है. Wonderful. Okay, moving forward. Next values we are going to discuss. इंडिया में देखो, what we have discussed, communitarian society, heterogeneous values. Okay, अब what are the other aspects of Indian model of secularism? Religious evils. Okay, best example Indian model में आप religious evils, सती प्रथा. Okay, widow remarriage is not allowed, women education is not allowed, some cases triple talaq is allowed. ठीक है, तो आप ऐसे you can give n number of examples. So here state has to intervene. स्टेट को इंटरवीन करना पड़ता है to remove this religious evils. Okay, example की you can also give Shaira Bano case, where Supreme Court declared that triple talaq should be removed, and it violates Article 21, right to life of Muslim woman. Okay, but West में, Western model of secularism में somewhat rationality is there. Okay, rationality, their model of secularism is guided by science, तो वहां पे स्टेट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं पड़ती है. Okay, next point of Indian model of secularism,
constitutional values. Indian model of secularism is guided by the constitutional values. For example, the preamble itself have, okay, secular word, sovereign socialist secular democratic republic, okay, article 29 30, okay, ये सारी चीजें हैं, okay, जो कि it is guided by the secularism principle is protected by the ethos of constitution. So how many points we discuss? For West, we have seen three to 4 points. For Indian model, 1, 2, 3, 4, 5 points. And if any question comes on secularism, ओके इंट्रो, नम्रता देखो मैंने इंट्रो बताया था, ओके आई गेस आप थोड़ा सा लेट हो गए थे. फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द बॉडी, फिर मैं इंट्रो के बारे में बता दूंगा आपको. ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन द बॉडी, देन आई विल अगेन एक्सप्लेन इंट्रो. इज इट फाइन नम्रता? I hope it's fine. Let me just complete the body once. Okay, so this is the body part. Now, if any question comes on secularism, these are the 5-6 aspects on which you have to think. इस पे आपको सोचना पड़ेगा. Okay, the question is, how is the Indian concept of secularism different from Western model of secularism? These are the points that you have to brainstorm. Okay, great. Okay, Akash, constitutional values I'll explain. See, in India, what we saw, हमने क्या देखा कि भाई इंडिया में हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, मल्टीपल लोग रहते हैं, तो स्टेट को इंटरवीन करना पड़ता है. ओके, एंड अवर मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म हमें क्यों लाना पड़ता है? द मेन थिंग इज दैट माइनॉरिटीज नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड. अब सिर्फ स्टेट लॉज या फिर पुलिस के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते टू प्रोटेक्ट द कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज. सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट the rights of the minorities in Indian model of secularism, a safeguard of constitution has also been provided. How? In article 2930, religious, language, cultural and script rights of minorities are being protected. Okay, and in preamble, secularism word is inserted. अब देखो constitutional protection अगर provided होगा तो what would happen? ठीक है, अगर माइनॉरिटीज के राइट्स को एक तरीके से अगर सब्जुगेट किया जा रहा है, दे कुड डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. एंड आर्टिकल 2930 इज फंडामेंटल राइट. फंडामेंटल राइट के लिए एनी माइनॉरिटी कैन डायरेक्टली अप्रोच हाई कोर्ट. सो इट इज अ वेरी गुड शील्ड टू प्रोटेक्ट देयर religious and cultural values, and hence it strengthens the India's model of secularism. Akash, is it clear? Is it clear? Quickly tell me. I hope it's clear. Okay, wonderful, Akash. All right. So if any question comes on secularism, you have to think on these 3 or 4, 5 lines. Your answer would be very easily framed. Okay. Now, Namrata was saying ki just tell me about introduction. See, introduction, any question on secularism, you can introduce in 3 ways. The first way, you can simply define secularism. Second way, whenever there is Indian concept, you can use a very eminent scholar, Rajiv Bhargava. Rajiv Bhargava, what he says, that Indian model of secularism follows principled distance of state from religion. State और religion का principled distance होगा. Okay. For example, in West there is strict separation कि state religious matters में बिल्कुल भी intervene नहीं करेगी. But in India, state will intervene to remove the irrational and superstitious practices of religion. ठीक है, तो दिस इज प्रिंसिपल डिस्टेंस, जरूरत पड़ने पे इंटरवीन करेगी. और थर्ड वे, यू कैन इंट्रोड्यूस सेक्युलरिज्म बाय द एथोस ऑफ गांधी जी. ही सेड अबाउट सर्व धर्म संभव.
सी दिस टाइप ऑफ कीवर्ड्स, इस टाइप के कीवर्ड्स ना आपको बहुत मार्क्स फेच करेंगे इंट्रोडक्शन में, अगर आप कुछ भी थोड़ा सा अलग करोगे. सर्वधर्म संभव मीन्स every religion, every culture, every ethnicity have equal rights to preserve their cultural and religious values. सारे धर्म संभव होते हैं इंडिया में. Okay, so in these three ways you can introduce the any question on secularism. Okay, any question of secularism can be introduced through these three ways. Okay, I hope देखो आप इन चीजों को नोट करते हुए चलिए. आपके ये बने बनाए आंसर है, व्हाट आई हैव शोन कि ये क्वेश्चंस रिपीट कहीं ना कहीं होती हैं, तो ऑलरेडी फ्रेम्ड रहेगा आपको, तो लिखने में बहुत इजी पड़ेगा आपको. क्लियर? Okay, so how you are going to conclude this? How you are going to conclude this answer? Let's just come to this part. Okay, in the previous lecture I said ki how to conclude the aspects. Okay, either you sum up what you are saying, that how you can sum up the Indian model of secularism depends on is different from Western model of secularism depending on its cultural heterogeneous index. Okay, and large population to assimilate their way of living and instill mutual tolerance. मेन इस फॉर्म में होता है, आप सम अप कर दो. ठीक है, मेन आप एंड में क्या कर सकते हो? ठीक है, इंडियन मॉडल किस चीज के लिए है? टू इंस्टिल म्यूचुअल टॉलरेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. मतलब मेन एम क्या हो गया? फॉरवर्ड एम क्या है सेक्युलरिज्म का? भाई म्यूचुअल टॉलरेंस एंड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. सेकेंड वे, आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को ला सकते हो. द मॉडल्स ऑफ सेक्युलरिज्म आर मैंडेटेड to infuse or instill equality, tolerance, brotherhood, and liberty as mentioned in our preamble. ठीक है, ये इक्वालिटी में आर्टिकल 14 का रेफरेंस भी दे सकते हो. देखो, अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस पे कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस देते हैं, ओके, so it would become very difficult for examiner to cancel our points. ठीक है, एग्जामिनर हमारे पॉइंट्स को कैंसिल करने में उसको बहुत मेहनत लगेगी. क्लियर? Any doubt in this question? Anyone having any doubt in this question? How to build the answer, how to move forward? All those people who are joining the class for the first time, okay, I humbly request them to please watch the previous session. Recordings are available, please watch them. Okay, if you guys permit, I will move forward. Just give me a thumbs up if the question is clear. Okay, Ayush. Okay, so I'll just move forward. I'll proceed towards the next question. Okay. Are tolerance, assimilation, and pluralism? It was a question in 2022. The question is related to secularism. The first part of the question is tolerance, assimilation. Tolerance, assimilation, and pluralism, okay, are the key elements in making the Indian form of secularism. Second aspect, third aspect, and fourth aspect of the question. Justify your answer. Whenever they give you the term justify, that means you have to give examples, and here we will create live examples. Here I'll teach you how to create live examples. This question is very, very important. Okay, see, we know what is the Indian form of secularism. Okay, we know what is the Indian form of secularism. How we will introduce? Just give the reference of Rajiv Bhargava or Mahatma Gandhi. Okay, now what they are saying are tolerance. The first part is our tolerance, assimilation, and pluralism, the key elements in making of an Indian form of secularism. They are saying are
So yes, you have to 80% in 80% of the answer you have to justify yes these are the basic tenets, and 20% you have to say नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है. Okay, there are issues, there are communal violence, ये सब भी, because it is asking you a question are, so you have to write both the sides. Okay, so see the first tenet people talk about tolerance. Okay, tolerance, yes, tolerance is there between different sections of the society. Example you can give, ठीक है, how you can create live examples. Okay, I'll give you an example from last year in Kerala. Okay, in Kerala, when last year there was severe flood, okay, the Hindu temples offered Muslims for their prayers and namaz. Okay, again you can give some examples. Okay, आप जैसे बाबा अमरनाथ यात्रा में जाते हो, okay, most of the horsemen are Muslims. Most of the horsemen are Muslims. You can give the example of army. You can give the example of army where all the festivals are celebrated, whether it be Eid, it be Christmas, it be Diwali, under the commanding officer सब लोग साथ में आके फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं. तो इट शोज द लेवल ऑफ टॉलरेंस. ओके, इट शोज द लेवल ऑफ टॉलरेंस. ये पूरा क्वेश्चन एग्जांपल का खेल है, पूरा एग्जांपल का खेल है. क्लियर? नेक्स्ट. ओके, what we have said, yes, tolerance is a key element, but yes, there are because they are saying our tolerance and question mark पूछ रहे, तो हमें दोनों साइड लिखना है. बट नहीं, कई बार टॉलरेंस एब्रोगेट भी होते हैं. ओके, मेनी टाइम्स टॉलरेंस इज आल्सो नॉट देयर. फॉर एग्जांपल, नो वायलेंस इन हरियाणा. ठीक है, आप देख सकते हो असम में जो क्लैशेस हुए थे, कंधमल वायलेंस, कंधमल वायलेंस इन ओडिशा, हिंदू मुस्लिम क्लैशेस. तो और कोई सा भी आप कहीं पे भी दंगे हुए हो, हिंदू मुस्लिम किसी भी टाइप के क्लैशेस हुए हो, यू कैन गिव इट एब्रोगेट्स टॉलरेंस. कोई सा भी कुछ ना कुछ एग्जांपल तो हो गई. 3 एग्जांपल मैंने बता दिए, इसे आप नोट कर लो. ओके, और देखो अगर ये एग्जांपल्स आपके पहले से ही क्रिएटेड होंगे, इट वुड बिकम इजियर फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस इन मेंस एग्जामिनेशन. सो वी हैव एड्रेस्ड द टॉलरेंस पार्ट. नाउ एसिमिलेशन. व्हाट डू यू मीन बाय एसिमिलेशन? एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मतलब आपके जो एकदम कट्टर रिलीजियस वैल्यूज होते हैं, है ना, आप उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन आई वुड से कि इक्वालिटी को जस्टिफाई करने के लिए आप अपने कहीं ना कहीं जो एकदम कट्टर प्रैक्टिसेस होती है उसको आप कॉम्प्रोमाइज करके एक कॉमन जगह आते हो. ओके, एक कॉमन गोल को आते हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं एसिमिलेशन का. व्हेन एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन आर सेम, कि जो एक्सट्रीम ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है ताकि एक सोसाइटी में टॉलरेंस, इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एस्टैब्लिश की जा सके. ओके, आई विल गिव यू द एग्जांपल, हिंदू कोड बिल. ओके, हिंदू कोड बिल आया था 1950s के आसपास. तो इसने जैसे कि वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स अलाउ किया था. ओके, पॉलीगैमी वाज डिक्लेयर्ड इलीगल. ठीक है, इट वाज मतलब हटा दिया गया था. तो अर्लियर दीज वर, मतलब वुमेन्स को अगर हिंदू रिलीजन के प्रैक्टिसेस में देखें तो वुमेन को पहले प्रॉपर्टी राइट्स वर नॉट गिवन, पॉलीगैमी वाज प्रिवेलेंट. इन सबको हटा के एसिमिलेट किया गया इन द कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन, isn't it? It is the process of assimilation. You can give the example of triple talaq. ट्रिपल तलाक होता था पहले शरीयत लॉ के हिसाब से, बट यस, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लॉ बनाया गया. सुप्रीम कोर्ट का शाबानो जजमेंट आया एंड ट्रिपल तलाक वाज रिमूव्ड. सो दे आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिमिलेशन. ओके, बट नो, इसके अगेंस्ट में भी हमें लिखना है क्या, जैसे वायलेंस हो जाता है. ओके, फॉर एग्जांपल किसी एरिया में मंदिर एंड मस्जिद बोथ आर देयर.
ओके, मंदिर में क्या होता है, जो पूजा पाठ वगैरह होता है वहां पे लाउड स्पीकर इन सबसे होता है। ओके, बट मस्जिद में जैसे अपार्ट फ्रॉम नमाज वहां पे किसी टाइप का मतलब आवाज शोर शराबा नहीं होता। तो यहाँ पे कई बार जैसे कि इसमें खरगोन, खरगोन करके एक जगह है मध्य प्रदेश में, देयर वर हिंदू मुस्लिम क्लैशेस। कई बार देखो ऐसे भी एग्जांपल्स देखने के, हनुमान जयंती में रामलीला की प्रोसेशन निकल रहे, पत्थरबाजी वाज देयर। ओके, तो ये आपके एसिमिलेशन की नहीं भाई, हम एडजस्ट नहीं करेंगे। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। आई एम ऑल्सो चेकिंग द डाउट्स इफ एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स। ओके, द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म का सिंपल मीनिंग हो गया सर्व धर्म संभव। अब ये प्लूरलिज्म कब आएगा कि मल्टीपल सेक्स अगर साथ में रह पा रहे हैं, मल्टीपल पीपल, मल्टीपल हेट्रोजीनियस इंडेक्स है, जैसे इंडिया का प्रीवियस क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे, हेट्रोजीनियस इंडेक्स है, ऑल कैन लिव टुगेदर पीसफुली एंड म्यूचुअल एंड विद म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस। एग्जांपल के तौर पे सेम आर्टिकल 2930 को आप पकड़ लेना सेक्युलरिज्म के क्वेश्चन में, वेयर द माइनॉरिटीज आर गिवन राइट्स टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, इजंट इट? तो इसकी वजह से सारे देखो, एंड वन मोर एग्जांपल, ठीक है, इंडिया इज नॉट अ थियोक्रेटिक नेशन। इंडिया, okay, India keeps equal distance from all, the government of India keeps equal distance from all kind of religion, neither it promotes any religious practice, neither demeans any religious practices. So it they are the examples of pluralism. अब प्लूरलिज्म के एंटीथीसिस अगेंस्ट का एग्जांपल क्या हो गया? एथनिक क्लैशेस। एथनिक क्लैशेस इसमें आप बहुत अच्छा एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट का यूज कर सकते हो। रीसेंट एग्जांपल मणिपुर, जहां पे कुकी एंड मैती ट्राइब्स में क्लैशेस हो रहे हैं, isn't it? So देखो, this was the question. We have separately addressed the term of toleration, tolerance, positive, negative. Okay, they asked us to justify. So we are also giving examples. Assimilation, positive, negative, we justified. Pluralism, positive, negative, we justified as per Indian forms of secularism. Okay, so this is what an UPSC examiner is looking for. द यूपीएससी एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर कंप्लीशन, पूरी तरीके से कंप्लीशन। उसने टॉलरेंस के ऊपर पूछा था पॉजिटिव नेगेटिव, एसिमिलेशन पॉजिटिव नेगेटिव, प्लूरलिज्म पॉजिटिव नेगेटिव विद जस्टिफिकेशन मींस एग्जांपल। वी हैव एड्रेस्ड हर एक पार्ट का पॉजिटिव नेगेटिव विद एग्जांपल्स पता है। अब आप बताओ, एग्जामिनर वुड बी बाउंड टू गिव यू 15 मार्क का क्वेश्चन था, बाउंड टू गिव यू 8 to 9 मार्क्स। उसके पास रीजन ही नहीं है ना नंबर काटने के। इन दिस वे यू हैव टू डिवाइड द क्वेश्चंस, इन दिस वे आपको क्वेश्चंस को तोड़ना पड़ेगा। आई होप इट्स क्लियर। Anyone having any doubt in this part? Please just tell me, anyone having any doubt on the questions of secularism? देखो अभी आई नो, yes you can, Rutvik, you can, definitely you can. आप यू कैन गिव एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स। देखो मैंने आपको इस क्वेश्चन में आई हैव गिवन यू अप्रोक्सीमेटली 12-13 एग्जांपल्स दिए होंगे अभी तक। आप इसमें जो भी करंट पढ़ रहा आप इसमें लाइव यूज कर सकते हो, वॉट एवर थिंग्स यू आर रीडिंग। इवन मैं आपको बता रहा हूं, टॉपर्स कॉपीज में देखना बहुत सारे एग्जांपल्स रहता है, हाउ डू दे क्रिएट एग्जांपल्स, क्रिएट एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल आई लिव इन भोपाल, ओके, अब व्हाट आई विल डू, टॉलरेंस का, टॉलरेंस का एग्जांपल दे दूंगा। फॉर एग्जांपल ओल्ड सिटी इन भोपाल, वी सॉ, ठीक है, कंबाइंड सेलिब्रेशन ऑफ ईद नियर ताजुल मस्जिद। ओके, तो दिस इज एन एग्जांपल आई क्रिएटेड। अब जस्ट थिंक, क्या एग्जामिनर, यूपीएससी के एग्जामिनर जो दिल्ली में आके, क्या वो भोपाल में आके एक एक चीज चेक करेगा ईद में साथ सेलिब्रेट किया कि नहीं? भाई मुझे तो टॉलरेंस का एग्जांपल देना था। सिमिलरली आप जिस एरिया में रहते हो आप उसका एग्जांपल बना दो। बट वट एवर पॉइंट्स यू आर राइटिंग, इफ इट्स अकम्पनीड बाय एग्जांपल, आपके हर क्वेश्चन में एक एक नंबर बढ़ेंगे।
अब हर क्वेश्चन में आपके 1 नंबर बढ़ गए, 20 नंबर आपके बढ़ गए हर एक क्वेश्चन में 1 1 करके। आपके मार्क्स 80 हो रहे थे, इट विल जंप टू 110। ऐसे ही चारों जीएस में बढ़ गए तो 80 मार्क्स बढ़ गए, जहां पे 400 आ रहे थे आपके 470 टू 480 आ जाएंगे। यस, आपके सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाएंगे। छोटी सी चीज हम समझ नहीं पाते, छोटी सी चीज है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट। यस, एनीवन हैविंग एनी डाउट? ओके, एसिमिलेशन। आकाश देखो, एसिमिलेशन का मतलब ये होता है आप अपने प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा मॉडिफाई, फॉर एग्जांपल आप मतलब रिलीजियस प्रैक्टिसेस कुछ कर रहे हो, ठीक है, आप अपने प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हो, ताकि दूसरे लोग जो है, दूसरे जो कम्युनिटी, जो दूसरे रिलीजन के लोग रह रहे हैं, है ना, उनके राइट्स अंडरमाइन ना हो, उनको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एसिमिलेशन मतलब सिंपल टर्म्स में एडजस्टमेंट। एसिमिलेशन का मतलब हो गया एडजस्टमेंट। आकाश, क्लियर? ओके, अब एडजस्टमेंट या तो खुद से करो या तो गवर्नमेंट करवाती है, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, हिंदू कोड बिल हो गया। ओके, तो कुछ नहीं, हम जीएस के एग्जांपल्स को लिंक कर रहे हैं, वी आर जस्ट लिंकिंग द जीएस एग्जांपल्स। क्लियर? आकाश, ओके। सो पीपल, आई नो योर प्रीलिम्स अभी आप लोग का आ रहा है, तो बस देखो, मैं अभी सिर्फ ये वीकली ये सेशंस कंडक्ट करा रहा हूं, ताकि आप लोग बस एक टच में रहो आंसर राइटिंग के साथ। एज सून एज योर प्रीलिम्स आर ओवर, हम इसको फुल फ्लेज मैनर में बहुत स्पीड में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? सो टुडेज क्लास हमने ये दो क्वेश्चन सेक्युलरिज्म के टॉपिक को डिस्कस किया। अब आप इसके बाद आप कोई सा भी क्वेश्चन लिखोगे सेक्युलरिज्म, आपके पास ये बेसिक टेनेंट्स बने हैं, यू वुड बी इन अ वेरी गुड कंडीशन टू आंसर दिस। सो डेली सैटरडे अभी मैं प्रीलिम्स के पहले तक आपका 40 टू 45 मिनट्स लूंगा, ओके, जस्ट टू आप लोगों की दोस्ती बनाना आंसर राइटिंग के लिए। ऑलराइट, सो हियर वी विल वाइंड अप दिस सेशन। एनीवन हैविंग एनी डाउट कैन जस्ट आस्क, और आई वुड रिकमेंड और सजेस्ट टू कंटिन्यू विद द प्रीलिम्स प्रिपरेशन। ओके, टॉलरेंस में देखो, जैसे जो केरला का एग्जांपल दिया है, लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वर केरला में फ्लड आए थे, ठीक है, साउथ सदर्न केरला पार्ट में देयर वर लॉर्ड ऑफ फ्लड। तो क्या हो गया था कि मोस्ट ऑफ द मॉस्क जो थे वो फ्लड में डूब गए थे, नम्रता। ओके, सो इट वाज इन न्यूज़पेपर कि कुछ हिंदू टेंपल्स ने एक स्पेस दे दिया था मुस्लिम कम्युनिटी को, ठीक है, कम्युनिटी को, कि आप आइए एंड आप यहाँ पे नमाज पढ़ सकते हैं। सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस, दैट द टेम्पल्स एक डिफरेंट रिलीजन के और एक डिफरेंट रिलीजन का कोई स्पेस किसी दूसरे रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अलाउ कर रहा है कि भाई आप आओ, हम आपको नमाज पढ़ने की जगह देंगे। तो इट शोज ह्यूमैनिटी ओवर द रिलीजियस वैल्यूज। ये न्यूज़पेपर में आया था, नम्रता। क्लियर? और किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। नम्रता, इज इट क्लियर? ऑलराइट, ऑलराइट। सो यस, देखो, हम ये क्लासेस का मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं क्योंकि काफी लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अभी बिफोर प्रीलिम्स टिल मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक हम डेली सैटरडे 10 बजे मिलेंगे, एंड एज सून एज द प्रीलिम्स आर ओवर हम इसके इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। टोटल 35 टू 40 सेशंस होंगे, इसमें हम चारों जीएस के पूरे पीवाईक्यूज को ऐसे करके थीमेटिक फॉर्मेट में, जैसे सेक्युलरिज्म के क्वेश्चन एक साइड हो गए, ओके, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को कैसे करके डील करना है, ऐसे करके थीमेटिक वे में करेंगे। तो इससे आपको एक आंसर बिल्डिंग की अप्रोच बहुत अच्छे से आ जाएगी। क्लियर? सो जो लोग लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, उनको लाइव सेशन में रिकॉर्डिंग देखने को मिल जाएगी। दे कुड अटेंड द रिकॉर्डिंग, है ना, रिकॉर्डिंग्स 10-15 मिनट बाद अवेलेबल, आई गेस आधे घंटे बाद अवेलेबल हो जाती है, आप उसको रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हो। एंड okay, fair enough, fair enough. I want to suggest one thing, it would be helpful if you put questions.
ओके ओके ओके, फेयर इनफ, इट इज वेरी वेरी जस्टिफाइड। ठीक है, मैं पहले से आपको 1 या 2 दिन पहले आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, तो आप उसके ऊपर लिख के आना, फिर इसमें आप करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं ग्रुप में ही क्वेश्चंस को सेंड कर दूंगा, ठीक है ऋत्विक? ओके, सो आई गेस हियर आई विल जस्ट वाइंड अप द सेशन। मैं आपको 2-3 दिन में क्वेश्चन शेयर कर दूंगा फॉर द नेक्स्ट सैटरडे डिस्कशन। ठीक है, okay, I cannot see any further doubts. Thank you so much for watching. Bye bye, take care, and Jai Hind. All right, Jai Hind, everyone.